now basic a plus b the whole square, a cube plus b cube, etc. Now we are continuing with the same topic, but in quadratic equation there are so many results which we use in undergrad. But for some your kind information, now we are discuss about some properties or some results which we use in next year. So for your information, if ax square plus bx plus c greater than 0, if any quadratic form ax square plus bx plus c greater than 0, if and only if your delta less than 0 and a greater than 0. My dear friends, last time we discussed about discriminant d. You know very well your discriminant d is same as it is delta. Symbolically we change in 11 and 12 discriminant d in place of we use delta. 10 तक आप यहाँ पे d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते थे. अब सेम फॉर्मूला के लिए we use the symbol in place of d we use delta, that is your b square minus 4ac. So first of all your b square minus 4ac delta, it is discriminant d, but in place of d we use the symbol delta. If any quadratic form ax square plus bx plus c greater than 0, if and only if your discriminant must be less than 0 and then e greater than 0. अगर आपको ऐसा लगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे कब यूज करनी है, कहाँ से यूज करनी है, तो अभी आपको इसको कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं करना है. जब ये टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा इन फ्यूचर, तभी प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करनी है. बट राइट नाउ at the same time, please keep it in your mind. Now next thing, your ax square plus bx plus c less than 0, if and only if with same condition your discriminant is less than 0, but here your a is also less than 0. So a is negative, discriminant is negative, then your quadratic form must be negative. Vice versa. If this is less than 0, then both the conditions are simultaneously occur at the same time, and if these two conditions are occur at the same time, then your quadratic form must be less than 0. So now, then your delta is nothing but your b square minus 4ac. Okay, one more result of the quadratic form, that is root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are in the form minus b plus or minus under root delta by 2a. अभी तक टेंस में आप लिखते थे minus b plus or minus under root d by 2a, but here we change the symbol b in place of delta, that is minus b plus or minus under root delta by 2a, where delta is nothing but b square minus 4ac. Okay, so कोई भी quadratic equation है, इसके रूट आप a फॉर्म में लिख सकते हो, ये फॉर्म में लिख सकते हो. But here we discuss if your discriminant, last time मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन बताया, फिर से रिपीट करके आप 10 में ऐसा लिखते थे of d is b square minus 4ac which is greater than 0, then roots of quadratic equation are real and distinct. Yes या no? Okay, root of the quadratic equation are real and distinct. If your discriminant b square minus 4ac is 0, then two roots are equal. Two roots are equal. Okay, and if your b square minus 4ac is negative, then roots are not possible in the real number system. That you have to know. In standard 10 तक आप पे एक रिस्ट्रिक्शन था कि अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना चाहते हो तो रियल नंबर सिस्टम
पॉसिबल नहीं है whenever your discriminant must be less than 0। लेकिन 11th में जिसके रूट आपको रियल नंबर सिस्टम में नहीं मिलते हैं वही रूट्स वही इक्वेशन के रूट्स आप 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मींस दैट सी में आपको उनका आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, that we have to discuss later on। Please keep it in your mind that if your quadratic equation कोई भी है, अगर इसके रूट्स फाइंड करने तो आपके पास एक 3 ऑप्शन है। मान लो कि आपका डिस्क्रिमिनेंट दैट मींस योर t लेस देन 0 है तो उसके रूट्स रहेंगे -b/2 रूट्स आर इक्वल। तो अभी फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ऐसा जो भी फॉर्मूला पे डिस्कस किया वो इसमें ऐसा कंफ्यूजन किया कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन और रूट फाइंड करने हैं तो आप इन मेथड से जा सकते हो। लेकिन think it is another way if you have two roots, for example alpha and beta are roots of the quadratic equation। if alpha and beta are roots of the quadratic equation then the equation is given by x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is 0। that means अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन फाइंड करना है, रूट से और इक्वेशन फाइंड करना है, तो यू गो विद दिस इक्वेशन x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is 0। now one more question that you have to have in mind, what is alpha plus beta? so mind well your alpha plus beta is nothing but the sum of two roots that we have to discuss earlier in last lecture। alpha beta is nothing but the product of two roots that also we have to discuss in last lecture। so alpha plus beta is nothing but -b/a and alpha beta is nothing but c/a। अगर आपके पास कोई भी दो रियल नंबर है जिसके रूट्स one is alpha and another is beta that you have to find the equation। as for example मैं आपको बताऊं, मान लो कि आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास मान लो कि अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू सपोज 3 है, तो सम ऑफ दिस टू रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस टू रूट्स इज 6। so sum of the two roots alpha plus beta is 5, product is 6। so your equation is nothing but x square minus sum of the two roots that is 5 into x, product of the root is 6 that is equal to that is your quadratic equation। जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है वो दो रूट्स के अगर इक्वेशन लिखना है तो कंपल्सरी यू गो विद दिस फॉर्म x square minus sum of the two roots into x plus product of the two roots is equal to 0 whenever your two roots are given, otherwise not। okay so यहाँ तक फ्रेंड्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन किया। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, क्यूबिक इक्वेशन। सो उसमें मैंने आपको बताया था कि मान लो कि ax³ plus bx² plus cx plus d is equal to 0 जिसके तीन रूट्स है अल्फा बीटा और गामा। तो एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसके तीन रूट्स है अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज सम ऑफ दिस थ्री रूट्स इज डिफाइंड एज -b/a। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसमें लास्ट फॉर्मूला मैंने लिखी हुई थी। ओके इसके बाद दो रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा दैट इज c/a, राइट और नॉट? ओके अल्फा बीटा बीटा गामा एंड अल्फा गामा and one more is product of these three roots is again -b/a। तो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट में फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है ax² x³ plus bx² plus cx plus d के तीन रूट से अल्फा बीटा और गामा then sum of these three roots is defined as -b/a where b is nothing but the coefficient of x², a is nothing but the coefficient of x³ with my negative sign, product of two roots plus alpha beta beta gamma and alpha gamma, alpha beta beta gamma and alpha gamma, and sum
nothing but c by a. That means coefficient of x divided by coefficient of x cube. And last में मैंने आपको बताया था product of these three rows is defined as minus d by a. That is constant term divided by the coefficient of a cube, coefficient of x cube. Okay? तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक की बात कंप्लीट हुई. अब मैं आपको एक नए टॉपिक के डिस्कशन के बारे में बताता हूँ. यहाँ पे आपने जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखी है जिसमें मैंने लिखा है कि रेशियो दैट इज a by b is equal to c by d, both are same. a by b is equal to c by d, both are same. तो इस पे से मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए कंपोनेंट और डिविडेंडो. कंपोनेंटो मतलब प्लस, डिविडेंडो मतलब माइनस. तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है. तो कैसे इसको अप्लाई करना है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मान लो कि आपके पास ऐसे दो रेशियो है 3/6 इज इक्वल टू 4/. अभी आप देखने जाकर आप बोलोगे सर ये इसमें तो इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, इसको यहाँ से कट कर दो, 1/2 1/2. ओके, 3/6 4/, दैट इज नॉट द सेम थिंग. बट we go with the component or dividend. So first of all you have to add in denominator in numerator, that is a plus b, and subtract your denominator from numerator, that is a minus b. Same order. Mind that अगर आप यहाँ में a में b ऐड करते हो तो डिनोमिनेटर में a में b सब्ट्रैक्ट करना है. a में b a minus b. सेम में राइट साइड पे c plus d लिखते हो तो c minus d लिखना है. देखो यहाँ पे अगर आपके पास a plus b तो यहाँ पे कंपोनेंटों में a plus b, डिविडेंडों में a minus b. अगर आपके पास c plus d है तो आप ऐसे लिख सकते हो c plus d, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं d minus b, that is wrong. So आपको कंपल्सरीली सेम ऑर्डर से जाना है. यानी न्यूमरेटर में जो जहां से आप स्टार्ट करते हो वही ऑर्डर से डिनोमिनेटर में स्टार्ट करना है. अगर आपके पास फर्स्ट और कंपोनेंट है तो आपको न्यूमरेटर में एडिशन करना है, सेकंड डिविडेंड है तो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन करना है. अगर कोई ऐसा बोले मेरे को पहले डिविडेंड में करना है फिर कंपोनेंट में करना है, दैट इज आल्सो ट्रू. वो लाइफ टाइम पे आपके क्वेश्चन पे कौन सी रिक्वायरमेंट है वो मेथड से आपको जाना है. मान लो कि यहाँ पे a by b है, इसमें डिविडेंड और कंपोनेंट लगाना है तो आप लिख सकते हो a minus b by a plus b, that is the set. समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताई 3/6 4/8. तो 3/6 यहाँ पे मैं इस पे मैं कंपोनेंट और डिविडेंड पे अप्लाई करूँ तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड करते हैं 3 plus 6, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट 3 minus 6, same way 4 plus 8 or minus 8. So that is 9 minus 3, that is 9 ऊपर 9 नीचे minus 3 ऊपर 12 नीचे minus 4. So दोनों साइड पे आंसर रहेगा -3 -3, that is the same answer. So first formula है कंपोनेंट और डिविडेंड. अगर आपके पास ऐसे कोई भी दो इक्वल रेशियो है तो आप अल्टरनेट कोई भी कंपोनेंट को भी अप्लाई कर सकते हो, डिविडेंड को भी अप्लाई कर सकते हो. वन मोर थिंग कि अगर आपको कई बार ऐसी भी सिचुएशन है कि अगर आपको सिर्फ न्यूमरेटर में अप्लाई करना है तो आप कैसे लिखना है? अप्लाइंग कंपोनेंट रो इन न्यूमरेटर. तो आपको क्या करना है? मान लो a by b है तो आप ऐसा करना है a plus b by b as it is. नो चेंज. कई बार ऐसी सिचुएशन है कि न्यूमरेटर में लिखने में अप्लाई करना है तो फिर सब्ट्रैक्शन करना है. बट कीपिंग इन योर माइंड दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंपोनेंट का मतलब प्लस, डिविडेंड का मतलब माइनस. सो आपको एक बात याद रखनी है. ओके, नाउ अब एक और स्टेप आगे जाता हूँ. सेम रेशियो है आपके पास. यहाँ पे है a by b is equal to c by d. तो यहाँ पे मैंने लिखा है each ratio. each ratio that means a के साथ c ऐड करो, b के साथ d ऐड करो. That is your first term complete. Then after a में से a minus c करो, b minus d करो. Your second both are same. That is called the each ratio. As for
तो आप लिख सकते हो 3 + 4 6 + 8 एक साइड कंप्लीट। राइट साइड पे 3 - 4 6 - 8 सेकंड साइड कंप्लीट। यहाँ पे न्यूमरेटर में 7 डिनोमिनेटर में 14 न्यूमरेटर -1 डिनोमिनेटर -2 फिर आंसर इज 1/2 यहाँ पे भी 1/2 बोथ आर इक्वल। So dear friends, that is the two most important point for your information कि अगर कंपोनेंट डिविडेंड और ईच रेशियो ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़े आगे जाता हूं मैं कि अगर ऐसा कोई भी टर्म है इफ अल्फा बाय बीटा इज डिफाइंड इफ एंड ओनली मतलब वाइस वर्सा, अगर ये राइट है तो ये बनेगा, ये राइट है तो ये बनेगा। तो अल्फा बाय बीटा इज डिफाइंड if and only if your beta is not equal to 0 and beta is not equal to 0 if and only if your alpha by beta is defined। ओके, इसके बाद यहाँ पे आओ पहले कि अल्फा बीटा 0 it is possible if and only either alpha is 0 or beta is 0 product of alpha and beta is equal to 0 it is possible only when either alpha is 0 or beta is 0 दोनों में से कोई भी एक 0 है तो अल्फा और बीटा दोनों का प्रोडक्ट 0 पॉसिबल है and vice versa। but in this case square of two numbers alpha square plus beta square is 0 sum of the square of the two numbers is 0 if and only both are simultaneously 0 मतलब दोनों 0 होना जरूरी है। The reason is कोई भी नंबर का स्क्वायर करो square of any real number is always non-negative। So if alpha and beta both are simultaneously 0 then only then your sum of the square of the two numbers alpha square plus beta square is equal to 0 otherwise not। In upper case either one of them is 0 then product is 0 but both are 0 then sum of the square of the number is always 0। ओके, एक एक्सपांशन के एक और फार्मूला है कि मान लो कि a plus bd होल स्क्वायर तो आप लिखोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a minus bd होल स्क्वायर which is a स्क्वायर minus 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आपको ये दोनों फार्मूला पे देखने में सेम नहीं लगती है बिकॉज़ देयर इज अ डिफरेंस और देयर इज a change in middle term। First term as it is, last term as it is with same sign, change is only there in the middle term। तो मान लो कि मेरे को इन दोनों को सेम करना है a plus bd होल स्क्वायर सेम है a minus bd होल स्क्वायर। मेरे को अगर ये टर्म को सेम करना है तो मैं क्या करूंगा, अभी तो है नहीं, अभी तो बोथ आर नॉट इक्वल। तो देखो ये दोनों सेम है तो इसके कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी दोनों सेम है नो चेंज। अच्छा आपको चाहिए प्लस 2ab, यहाँ तुम्हारे पास है माइनस 2ab तो आप क्या करोगे, तो प्लस 2ab में से माइनस 2ab में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्लस 2a आपके पास माइनस में आपको चाहिए प्लस 2 तो माइनस 2 से प्लस 2 करना चाहते हो आप प्लस 4 ऐड कर दो तो माइनस 2 प्लस 4 दैट इज प्लस 2 गया। अब बात हुई कोएफिशिएंट की, तो कोएफिशिएंट का यदि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो ये भी कर दो। अब इन दोनों का एडिशन करो, एडिशन ऑफ दिस टू टर्म माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 1 माइनस 2 दैट इज प्लस 2ab दैट मींस बोथ आर इक्वल। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इक्वल टू लिख के उसके बाद लिखूंगा प्लस 4ab। अभी आपकी फॉर्मूला बन जाएगी a plus bd होल स्क्वायर इज इक्वल टू a minus bd whole square plus 4ab। So dear friends यहाँ पे मैंने आपको सब फॉर्मूला बताई जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की, कंपोनेंट डिविडेंड ईच रेशियो, फिर सम बेसिक फॉर्मूला फॉर अल्फा बाय बीटा, अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कब डिफाइन होता है, उसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, उसका सम 0 कब प्रोडक्ट 0 कब होता है, उसका स्क्वायर ऑफ द सम 0 कब होता है, वो सब फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया था वही फॉर्मूला
अभी मैंने आपको फिर से यहाँ पे रिवाइज की क्यूबिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि nth में आप जो पढ़ के आए हैं वहाँ पे आपका एक रिस्ट्रिक्शन था फॉर डिस्क्रिमिनेंट डी के लिए, जब आपके रूट्स नेगेटिव होते थे तब, लेकिन योर डेल्टा दैट मींस योर d is b square minus 4ac is greater than 0, equal to 0 और less than 0। ये तीन कंडीशन आपके पास है। फिर से I repeat again the same thing, roots are real and distinct, roots are equal, and there doesn't exist any x belongs to R, there doesn't exist any x belongs to R such that your discriminant must be less than 0। so यहाँ पे रूट्स रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके बारे में आपको 11th में पढ़ना है। Now we are focused after some lecture, we go with your complex number, your chapter number 5 in textbook। तो complex number में आप जो 10th में आपके जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था वो रिस्ट्रिक्शन आपसे हट जाएगा, और कोई भी डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो उसका आंसर आपको पॉजिटिव ले सकते हैं। मान लो कि अभी आपको मैं ऐसा बताऊं इसका स्क्वायर रूट क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट -3, तो आप बोलोगे कि सर वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसकी पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर पाओगे। सो दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये सब फॉर्मूला जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आता है, मान लो कि फर्स्ट लेक्चर हुआ, सेकंड लेक्चर हुआ, फिर नेक्स्ट लेक्चर, एक दो लेक्चर थोड़े बहुत फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे जो 11th और 12th दोनों में जरूरी है। हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि आज हमारा 11th का लेक्चर है तो 11th के टॉपिक ही डिस्कस करेंगे, 12th का लेक्चर है तो 12th के टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन जनरल हम ऐसे माइंडसेट करके चलेंगे कि हम नहीं तो 11th में है नहीं तो 12th में है। A के लिए आपको 11th और 12th, देखो मैं आपको बता दूं 11 प्लस 12 इसमें पूरे मैथ्स में जितने भी टॉपिक है वो सब हम आपको यहाँ से कवर करने हैं। दैट मीन्स 11 और 12 में जितने भी चैप्टर्स है आपके, जितने भी चैप्टर्स है वो सब चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स है दैट आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन गेट एग्जाम, ओके, वो सब चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो इसमें जितने भी फॉर्मूला जो बुक में है और बुक में नहीं है, उसके अलावा बाकी की जो फॉर्मूला है वो अभी से हम पहले बेसिक मैथमेटिक्स में इसको कवर कर देंगे। इन फ्यूचर जो टाइम पे जहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी फिर से उसको रिकॉल करके हम प्रैक्टिकली इसका यूज करेंगे। लेकिन अभी आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि इसका कितना कैसे याद रखना है, कैसे याद रख सकेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अभी जो भी फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं उसमें आपको ऐसा नहीं रखना है कि अभी ये सब इसको रट दो, इसको क्रेविश कर दो। अभी इसको हर रोज जैसे आपको टाइम मिले वैसे 10-15 मिनट निकाल के इसको सिर्फ विजुअलाइजेशन मेथड से आपको देखना है। तो एक हफ्ते के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि वो सब फॉर्मूला आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगी, फिर अगले नेक्स्ट टाइम तक आपको ये फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ में आता है? आज देखा, कल देखा, परसों देखा, you have to go with 7 days with 10 formulas with visualization method, then after 1 week आपको रिटर्न वर्क करके पूरी फॉर्मूला एक बार लिखनी है। अभी तो देखो अभी क्या करना है कि यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर चल रहा है उसमें जो जो फॉर्मूला मैंने फॉरवर्ड में लिखा है वो इसकी अच्छी नोट्स बना के आपको पूरी फॉर्मूला साथ साथ लिखनी है, वो अलग बात है। लेकिन एक हफ्ते के बाद विजुअलाइजेशन मेथड से अगर आप फिर से फॉर्मूला रिवाइज करोगे तो तभी आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सब आपके लिए इजी है। तो आप इजीली
कैप्चर कर पाओगे। देखो अभी आपका स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग से इनिशियल स्टेज से अभी हम थोड़े स्लो मोशन में जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट लेक्चर से वी आर फोकसिंग अबाउट आवर न्यू टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन अभी एक दो लेक्चर के लिए फिर से आपके 10th में और 8th 9th में जो भी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े हो उसकी जो भी फॉर्मूला बाकी है मैं आपको सबसे पहले दिखा दूंगा, फिर हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।